السلام علیکم. آپ کے ساتھ میں ہوں ماہنور سید اور آپ کے ساتھ میں آج میرے ساتھ ہیں شیما کرمانی. آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ شیما؟ تھینک یو. اور میں ناظرین کو بتاتے چلوں کہ شیما کے بارے میں ان کی پہلی پہچان تو کلاسیکل ڈانس ہی ہے، لیکن اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے شیما کہ آپ کے بچپن کے بارے میں جانیں، آپ کی فیملی کے بارے میں جانیں. بچپن میرا پاکستان کے مختلف شہروں میں گزرا جی. اور کوئی میرے خیال میں کوئی 13 سال کی عمر سے میں کراچی میں رہی ہوں. اور میری فیملی میں میرا ایک بھائی ہے جو مجھ سے بڑا ہے، میں بیچ میں ہوں، اور ایک میری چھوٹی بہن ہے. صحیح. اور بچپن آپ نے بتایا کہ کراچی میں گزرا اور 13 سال کی ایج کے بعد سے آپ اب تک، یہ بتائیں کہ پیدا کہاں ہوئی تھی؟ کراچی میں پیدا ہوئی؟ نہیں، اتفاق سے میں پیدا ہوئی ہوں. میرے پیرنٹس ٹرانسفر تھے راول پنڈی میں. جی. راول پنڈی کی پیدائش، یعنی کہ پنجاب کی پیدائش ہے آپ. اچھا یہ بتائیں کہ عام طور پر کہا جاتا ہے شیما کہ جی ہم بچپن سے یہ جانتے تھے کہ ہم نے یہ بننا ہے، یا ہم یہ بننا چاہتے تھے، یا جی ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، یا ٹیچر، یا امی ابو کی یہ انہوں نے پش کیا کہ نہیں میری بیٹی یہ بنی ہے، میرا بیٹا. آپ کے ساتھ کیا تھا کہ آپ نے شروع سے سوچا ہوتا ہے کلاسیکل ڈانس میں آپ آئیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ذرا بھی نہیں. میرا خیال میں نہ میں نے سوچا تھا، نہ میری فیملی میں کسی نے سوچا تھا. جیسے سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے میرے خیال میں کہ مختلف فیزز پہ آدمی مختلف چیزیں سوچتا ہے کہ کبھی انجینئر بننا ہے، کبھی ڈاکٹر بننا ہے، کبھی کچھ. مگر جب میری اسکولنگ ختم ہو رہی تھی تب میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے آرٹسٹ، پینٹر بننا ہے. تو میں فائن آرٹ سے بہت دلچسپی رکھتی تھی، اور بلکہ میں نے کوالیفائی بھی جو کیا ہے، تو مطلب اسکولنگ کے بعد میں فائن آرٹس پڑھنے باہر گئی تھی، اور میں وہ پڑھ کے آئی. اور پھر میں نے پڑھایا کافی عرصہ ہسٹری آف آرٹ اور پینٹنگ اور ڈرائنگ. اور پھر کافی بعد میں مجھے ڈانس سیکھنا تو میں نے شروع کر دیا تھا، مطلب بچپن میں کوئی 13-14 سال میرے خیال میں جب کراچی آئے ہیں اس کے فوراً بعد ہی ڈانس سیکھنا شروع ہو گیا تھا. مگر بچپن میں یہ تھا کہ بہت سی چیزیں سیکھتے تھے. کلاسیکل میوزک بھی سیکھا. تو یہ اس طرح سے تھا کہ یہ سب کہ شروع سے شوق تھا آپ کو. شاید مجھے بھی شاید اتنا نہیں شوق تھا، مگر میری فیملی میں کچھ اس طرح سے ٹریڈیشنز تھے کہ تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے آرٹس کی ٹریننگ بھی. تو اب جیسے میری والدہ نے بھی ستار بجانا سیکھا تھا، ڈانس کرنا سیکھا تھا، گانا تو اس طرح سے ہم لوگوں کو سب کو بچپن سے کلاسیکل میوزک سکھایا گیا. کلاسیکل تھیٹر کے بارے میں بتاتے تھے، دکھاتے تھے وغیرہ. تو اس طرح سے آرٹ سے تعلق رکھا آپ کو ہمیشہ سے. جی. تو یہ تھا، مگر یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ڈانس سیریسلی کیا جائے گا. نہ میرے خیال میں نہ میری فیملی نے کبھی سوچا تھا، نہ میں نے کبھی سوچا تھا. یہ تو ہوا جب کہ مطلب میں باہر سے پڑھ کے آ گئی تو میری ایجوکیشن ختم ہو گئی. میں جاب کر رہی تھی. پھر میں نے مگر میں اپنی ٹریننگ کنٹینیو کرتی تھی. ایک تھے مسٹر اینڈ مسز گھنشام. یہ لوگ کراچی میں رہتے تھے، اور ان کا ایک ادارہ تھا جہاں پہ ڈانس اور ڈرامہ اور کلاسیکل میوزک اور یوگا، یہ سب چیزوں کی کلاسز ہوتی تھی. تو میں وہاں جاتی تھی، اور ان کے پھر جو ان کا ایک پرفارمنگ گروپ تھا اس کا حصہ تھی. پرفارمنسز کرتی تھی، ان کے پرفارمنسز میں حصہ لیتی تھی. تو وہاں پہ میں جب 8-10 سال سیکھ چکی تو وہاں پہ میں سکھانے لگی ایک طرح سے. پھر مجھے ایسا ہوا کہ یہ چیز میں اس کو آگے کیوں نہ پڑھاؤں. مطلب آہستہ آہستہ میری دلچسپی بڑھتی گئی، اور شروع میں بالکل نہیں تھی. اچھا جب آپ شروع میں وہاں گئیں تو کیا اور بھی لڑکیاں ہوتی تھیں آپ کے ساتھ؟ گھنشام میں تو بہت لوگ ہوا کرتے. میرے خیال میں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس گزرے ہیں کراچی میں اس زمانے میں گھنشامس کے اسکول سے. ان میں سے شاید ہی کوئی ہو جن کا نام ماشاء اللہ آپ کی طرح آگے آیا ہو. ہاں، یہ ضرور ہے کہ کسی نے اس کو سیریسلی آگے نہیں بڑھایا. پر جب 1980 میں جب ڈانس پہ بین لگا، جنرل ضیاء الحق نے جب بین لگایا، تو اس وقت ان لوگوں کا اسکول پہ بھی پابندی آ گئی کہ اس کو بند کرنے کی ضرورت پڑ گئی. اور پرفارمنسز پہ بھی پابندیاں آ گئیں جیسے آپ کو معلوم ہے. تو اور اس وقت تک میری دلچسپی کافی بڑھ گئی تھی ڈانس میں. اور ان لوگوں نے بھی مجھے یہ رائے دی تھی کہ تم کو اگر اس کو مزید آگے بڑھانا ہے تو تم جاؤ ہندوستان اور اس کو آگے سیکھو، پروفیشنلی سیکھو. تو پھر میں چلی گئی تھی
इंडिया उस ज़माने में, जब ये स्कूल बंद हुआ है कराची में, तो मैं इंडिया में थी। जिस दौर में आप गए इंडिया, तो उन दिनों जाना आसान था इंडिया, या वही मुश्किल? नहीं, बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था, बल्कि उन दिनों में तो बहुत कम लोग जाते थे। और मैं समझती हूँ, मैं एक कोई अजीब सी चीज़ वहाँ पे भी लोग समझते थे कि क्या चीज़ है जो कि पाकिस्तान से डांस सीखने आई है और कहती है कि वापस जाके डांस करेगी, क्योंकि उस वक्त भी तासुर और इमेज ये था पाकिस्तान का कि यहाँ डांस तो हो ही नहीं सकता। वाकई में मतलब उस वक्त से शुरू हो गया था जब डांस पे बैन लग गया था, और हमेशा से ही रहा है जैसे कि। तो फिर मैं इंडिया गई, फिर मैंने वहाँ पे 1 साल लगाया, मैंने सीखा, फिर मैं वापस आई। उस वक्त तक घनश्याम्स का स्कूल बंद हो गया था, तो उन्होंने कहा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे उनको सिखाना शुरू कर दो। फिर मैंने शुरू किया, मगर उसके बाद फिर मुझे एक स्कॉलरशिप मिला था इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन से। तो फिर मैं 1 साल के लिए दोबारा गई, फिर मैंने और उसको सीखा। तो जिसमें मैं ये कह रही थी कि ये ऐसे आर्ट्स हैं कि इनका कोई एंड नहीं है, मतलब आप सीखते चले जाए तो ऐसा लगता है जितना ज़्यादा सीखा ऐसा लगता है उतना कम मालूम है। तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था कि मैं इतने मतलब लेट स्टूडेंट लाइफ ख़त्म करने के बाद, मतलब मैं दोबारा से गई और मैं एक हॉस्टल में रही, और एक तरह से स्टूडेंट के तौर से मैंने ज़िंदगी शुरू हुई, और आपको ऐसा लगता होगा आप दोबारा से स्टूडेंट बन गई। और फिर मैंने बस ये तय कर लिया था कि मुझे यही करना। देखिए, एक तो ये था कि यहाँ पे उस पर इतनी पाबंदियाँ लग गई, मुझे लगता था, और सब लोग चले गए थे, जो भी पाकिस्तान में डांसर्स थे वो मुल्क छोड़ के चले गए। ऐसा वक्त था, मैं समझती हूँ वो 10 साल के पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान कोई और क्लासिकल डांसर नहीं था सिवाय मेरे। तो मुझे एक तरह से लगता था कि ये वो भी है कि करना चाहिए इसको आगे बढ़ाए, वरना ये वहीं दब जाता, वहीं रह जाता, खत्म होके रह जाता, कोई नहीं था, एक नाम नहीं। आपकी इसी बात से बात को आगे बढ़ाऊंगी कि हमारा माशरा कह लें या ये कह लें कि हमारी हुकूमत है, इसने कभी भी इस फन को तस्लीम नहीं किया, और आज भी मैं देखती हूँ कि उस तरह एक्सेप्ट नहीं करते बिल्कुल क्लासिकल डांस को। इसकी क्या आप मेन रीज़न आप क्या समझती हैं? इतने अरसे से माशाल्लाह आप हैं, इतना आप कर रही हैं, आज आपका नाम उन नामों में जो सबसे पहले इसमें आता है। जी, बहुत मेरे ख्याल में बहुत तशवीशनाक बात है ना, और बहुत अफसोस की बात है। इतना खूबसूरत फ़न, एक आर्ट फॉर्म जो कि मैं समझती हूँ, देखिए एक तरह से तो हर इंसान के अंदर है मूवमेंट, बिल्कुल ताल, सब चीज़ें इंसान के अंदर हैं, और उस पर आप पाबंदी लगा दें, और जो आप अपने जिस्म से करते हैं, इसके लिए आपको बाहर की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो एक तरह से आदमी ये भी कह सकता है कुदरती चीज़ है। हाँ, और देखिए इतनी नेचुरल सी चीज़ है ना कि इंसान खुशी में करता क्या है, खुशी में झूमता है, रक्स करता है, एंजॉयमेंट में रक्स करता है, तो इसको कैसे आप बंद कर सकते हैं? तो इसकी वजह कहीं ये तो नहीं कि इस्लामी रियासत है, अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो उनका तो कल्चर है, उधर तो देखिए जहाँ तक मज़हब का और रक्स का ताल्लुक़ है, तो मज़हब ने कहीं भी नहीं रोका है कि आप रक्स ना करें, किसी भी टेक्स्ट पे कुरान में कहीं ये नहीं लिखा है जी। तो ये तय कर लेना कि ये मज़हब के ख़िलाफ़ है, ये मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत बात है। वैसे आप देखें तो जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, मिसाल के तौर पे अमीर खुसरो, मौलाना रूमी, शाह लतीफ़ भिटाई, बुल्ले शाह, ये लोग खुद रक्स करते थे, ये लोग खुद शायरी करते थे, ये लोग खुद गाते थे। तो ये तो एक आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसका मतलब एक एनलाइटनमेंट मिले। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बहुत बड़े फ्लूट प्लेयर थे, बांसुरी बजाने वाले उस्ताद रहे हैं हिंदुस्तान में, उनका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हाँ, तो उनसे वो क्लासिकल बांसुरी बजाया करते थे। उनसे भी बहुत सारे जो फंडामेंटलिस्ट मुसलमान हैं, उन लोगों ने कहा कि आप इतने बड़े मुसलमान हैं तो आप ये कैसे करते हैं, आप मौसीकी कर रहे हैं और आप बांसुरी बजाएं। तो उन्होंने कहा कि लोग बैठो, और बजाना शुरू किया। मैंने कहा अब तुम्हें क्या इसमें खुदा ने सुनाई दिया कि आवाज़ में नहीं लगा कि इसका कोई बड़ी बात है। हाँ, तो एक स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो तो हर आर्ट में है, हर आर्ट फॉर्म में है एक तरह से।
अच्छा शीमा, जहाँ तक मुझे इल्म है और जैसा कि अभी आपने बातों में बताया भी कि जब आपने स्टार्ट लिया कराची आके, तो यहाँ पे एक घराना होता था घनश्याम नामी, जो कि सबसे पहले इस फ़न को वो पाकिस्तान में लेके आया और इसको उन्होंने जो है यहाँ पे फ़रोग़ दिया। उसके बाद तो यही है कि इनफरादी तौर पर हर कोई जो है इसमें चलता रहा। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि अभी तक वो इनफरादियत ही कायम है? अब नहीं, मैं समझती हूँ सिर्फ वही नहीं थे, घनश्याम नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग थे कराची में। नजरुल एकेडमी थी यहाँ पे, और लेकिन पहला घराना तो आई थिंक वही था, मतलब जिन्होंने बाकायदा एक इंस्टीट्यूट या एक एकेडमी कायम की थी यहाँ पे। जिसने आपने बताया कि हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट होते हैं। जी। तो बस उनको तो बहुत अफसोस की बात है कि उनको एक तरह से पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। ज़ाहिर बात है, जहाँ पे बैन लग जाए और ये हालात हो जाए तो वहाँ तो मगर वो अभी भी वापस आना चाहते हैं। वो लोग इतने अरसे से, मतलब आप सोच लीजिए कि कितने साल हो गए हैं कि वो अमेरिका में रह रहे हैं। उनको फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स वगैरह बन गए, मगर उनको ख्वाहिश है अभी भी पाकिस्तान आने की, क्योंकि उन्होंने अपना सेटअप ही यहाँ पे किया था और इतना अरसा यहाँ पे उन्होंने लगाया, इतने लोग जानते हैं उनको यहाँ पे। उसके बाद से ये है कि मैं सिर्फ सिखाती रही, और एक आध और थे जो कि जैसे इनफरादी तौर पे सिखाते थे लोगों के घरों पे जा कर के, मगर बाकायदा स्कूल और ट्रेनिंग सिर्फ मैं ही देती रही हूँ। और मैं भी इतने साल अब हो गए, आप सोचिए कि 1980 से अब तक सिखा रही हूँ, तो मेरे पास भी स्टूडेंट्स गुजरे हैं। तो आप इसी बात को आगे ये मैं बढ़ाना चाहूँगी। आप ये बताइए, क्या इसको आप समझती हैं कि ये आगे जो है ये कंटिन्यू रह सकेगा, जिस तरह से आप माशाल्लाह इतने बरसों से कर रही हैं क्लासेस? नहीं, मेरे ख्याल में यही तो अनफॉर्चुनेट बात है कि क्योंकि ये चीज़ें जब तक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं की जाए ना, और बाकायदा एक इंस्टीट्यूट नहीं हो, तो बड़ा मुश्किल है। इंडिविजुअल्स कब तक चल सकते हैं? तो ये तो कोशिश, तो अभी मेरी यही कोशिश है कि मेरे मरने से पहले कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि कोई एक इंस्टीट्यूट बन जाए, कोई एकेडमी बन जाए, जहाँ पे, क्योंकि मैंने इतने लोगों को सिखाया। अभी कराची में जहाँ भी डांस सिखाया जाता है ना, वो सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो ये लोग कुछ आगे भी चला सकें। अभी जो है मेरे पास, मतलब मैं सिखाती हूँ, छोटी बच्चियाँ होती हैं 8 साल की उम्र से लेकर के, फिर बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं, फिर अडल्ट्स की सीनियर क्लासेस हैं, जूनियर क्लासेस हैं, इस तरह जो अडल्ट्स आते हैं आपके पास, ये ऑलरेडी इन्हें पहले से कुछ आता है या आपको वही अलिफ से लेके? हाँ, नहीं, ज़्यादातर तो बिल्कुल नहीं, बल्कि लोगों ने परफॉर्मेंसेस भी बहुत कम देखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे होते ही क्या है, मतलब सवाए हमारे परफॉर्मेंसेस के तो कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। तो लोगों को, क्योंकि वही गिने चुने नाम है, अगर आप उंगलियों पे गिने, अगर आपका नाम है नाइस सिद्दीकी,